So let's frame a very simple example for everybody. Taking the example that there are two companies. One is called as Maruti Suzuki India Limited and other is called as Tata Sons. Children, Maruti Suzuki India Limited has sales, जिसे आप revenue from operations बोलते हैं, 2,000 crores and Tata Sons 1,000 crores. So comparing the sale of both, which company sounds or seems to be sounding better? Because Maruti has higher sales. Similarly, if I talk about profit, let us say Maruti ka profit 200 crores ka hai and Tata also has a profit of 200 crores. What is 200 crores as a percentage of 2,000 crores, children? 10%. 10%. And 200 crores as a percentage of 1,000 crores? 20%. So which company sounds to have more profit, children? Tata Sons. Tata. 20% hai, and Maruti has a profit of 10%. Children, this is called as profitability in relation to sales or RFO. सुनाई पड़ गया? चलिए, moving ahead, children, moving ahead. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? Then children, capital employed की अगर हम बात करें, shareholder funds and non-current liabilities for Maruti Suzuki India Limited is, let us say, 800 crores and this is 200 crores. What is 800 plus 200? 1,000 crores is the capital employed hai. And shareholder funds for Tata is 700 crores and non-current liability is also 700 crores. So for them it is how much? 1,400 crores. So for Maruti people, capital employed is 1,000 crores. And for Tata Sons, the capital employed is 1,400. सबको सुनाई पड़ गया? अब थोड़ी सी मैथ अप्लाई करिए. 200 crore is what percentage of 1,000 crores? 20%. And 200 crores is what percentage of 1,400 crores? Divide 200 by 1,400 and multiply it by 100. 200 divided by 1,400 into 100. It is 14.28%. So children, this is called as profitability in relation to capital employed. So अगर आप sales के basis पे देखेंगे तो मारुति की profitability 10% है and Tata, which company sounds to be better? Simple as that. But if you see to it on the basis of total money that is being put to use in the business, तो आपको profitability किसकी ज्यादा नजर आ रही है? So Maruti is able to use the money invested in a much better manner in comparison with Tata. But who has a better sales policy or a sales force or better managerial practices in terms of sales? Answer is Tata. Logic समझ में आया कि नहीं? पक्का? Confirm? So children, profitability ratio is this only. When we express our profit in relation with revenue from operations or capital employed, and every time children it is calculated in terms of percentage, the ratio is known as a profitability ratio. समझ में आ गया? So as blood is important for body, children, profit is important for business price, because without profit can we give good dividend? No. Can we have faith among the shareholders in the same so-called feed in comparison to the other companies जो ज्यादा dividend दे रही हैं? No. क्या लोग हमारे IPO के लिए easily apply करेंगे जब हम ज्यादा profit ही नहीं कमा पाते? Not at all. Creditors भी काफी विश्वास रखेंगे हमारे ऊपर that we'll be able to pay their debts on time, and shareholders also have a firm belief that the company is having good profits, definitely is not going to dissolve, and money is highly safe with them. So we calculate profitability in relation with sales, which is called as RFO.
और फंड्स. फंड्स मीन्स चिल्ड्रन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप आज एक और टेक्स्ट लिख दीजिए, टाइटल्ड एज लॉन्ग टर्म फंड्स. समझ में आया बच्चों? प्लीज पुट दिस एग्जांपल वेरी क्विकली. Yes, sir. So profitability is always compared in two circumstances, one with respect to sales जिसे आप RFO बोलेंगे, and other with respect to money contributed in the business, in the company by shareholders and lenders. So let's start in this category, children, the various ratios. But prior to that, you need to understand this statement. I repeat, children, you need to understand this statement. इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं एक कॉम्पोजिशन यूज कर रहा हूं, उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. Children, remembering trading and PL account of class 11th? Yes, sir. चलिए. So I'll be only doing the postings. ठीक है. First and foremost, we used to write what, children? Opening stock. Credit side पे sales less sales return. You can copy this, children. And thereafter we used to have closing stock. Then we used to write purchase minus purchase return. I won't be expanding this a lot. We have direct expenses. Am I correct to this? Yes. And then, children, generally debit used to be short. What we used to put? Gross profit. Kachori damalu. Carried down. Correct? Double line is not to be drawn because the account is not being closed. Thereafter, children, thereafter, हम लिखा करते थे by gross profit brought down. स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा. 11th क्लास अगर लोगों को याद हो, I told everybody that indirect expenses are of two types. One is called as operating expense and other is called as non-operating. ये होते क्या है, ध्यान से सुनिएगा. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज थी, मैं आपको क्लास 11 पढ़ा रहा हूं. फर्स्ट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेकंड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर बेसिकली कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. ध्यान से सुनिएगा, पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है. दोज एक्सपेंसेस which increase with the increase in the intensity of business activities and decrease with the decrease in the intensity of business activities are called as operating. More goods, if you wish to sell, more polythene bags are needed to pack the goods and give it to the customer. The number of hours you will be opening your showroom or shop, more would be the electricity expenses. If you happen to set up a store in a wide area in multiple floors, rental charges would increase. If you have a very great sales task force in your business, you would be needing to pay more salaries to those people. समझ में आया? तो आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे. भाई एवरीबडी मस्ट हैव विजिटेड रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स एंड ऑल. आप कंपेयर करिए रिलायंस डिजिटल या रिलायंस के किसी भी स्टोर को, चिल्ड्रन, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, किसके खर्चे ज्यादा होंगे? सिंपल एज दैट. उनके पास आपको 100 पीस टेलीविजन सेट नजर आ जाएगा, उनका स्टोर बहुत बड़ा होगा, 20-30 एम्प्लॉइज आर देयर. XYZ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में 4 एम्प्लॉई हैं. 10 पीसेस से ज्यादा आपको टेलीविजन सेट वहां पे नहीं मिलेंगे. 11 बजे स्टोर खुलता है, 8 बजे अच्छे बच्चे की तरह बंद हो जाता है. रिलायंस वाले बुक्कड़ की तरह सुबह 9:30 बजे स्टोर खोल लेंगे और शाम को 9-9:30 तक बिलिंग करते रहेंगे. उसके बाद भी अगर हम आप उल्लू हैं तो हम रात में जग के ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वो भी कल परसों डिलीवर हो जाएगा. रिलायंस का अपना गूगल और iOS पे प्ले स्टोर पे ऐप है, बट XYZ स्टोर का ऐप नहीं है. तो भाई किसके खर्चे ज्यादा होंगे? रिलायंस के. लॉजिक समझ में आया कि नहीं बच्चों? सो दोज एक्सपेंसेस which increase with the हरकतें of the business and decrease with the हरकतें of business. सर मोहब्बतें सुने थे पिक्चर, या हरकतें कौन सी पिक्चर है? बिजनेस एक्टिविटीज के बढ़ने से जो बढ़ जाए और घटने से जो घट जाए. यू आर अ टीचर, आप बच्चों को पढ़ाते हो, जाके सो जाते हो.
मैं पढ़ाता भी हूँ, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग भी है, फिर उसके बाद उसको रिड्यूस भी करना है, फिर यूट्यूब पे अपलोड भी करना है, तो इंटरनेट के चार्जेस ज्यादा होंगे। सो जितनी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी खर्चा बढ़ेगा, जितनी घटेंगी खर्चा घटेगा। सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इकोनॉमिक्स की भाषा में चिल्ड्रन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। रिलायंस वालों ने भी करंट अकाउंट खोला, मैंने भी करंट अकाउंट बैंक में ओपन किया, आपके पापा ने भी करंट अकाउंट ओपन किया। क्या रिलायंस वाले एक चेकबुक का 2 लाख रुपए देंगे? हम क्या 2 रुपए देंगे? आपके पापा 1,000 रुपए देंगे? नो, बैंक सब लोगों से कॉमन चार्जेस लेगा। Those expenses which remain unaffected with the activities of the business are called as non-operating. तो बिजनेस एक्टिविटीज के बढ़ने से खर्चा बढ़े और घटने से घटे, ऑपरेटिंग। But when expenses are to be incurred irrespective of the business activities, we call them as what children? Non-operating. इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, so children, थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्रेडिट में जीपी नजर आ रहा है सबको? डेबिट साइड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज विजिबल। सो चिल्ड्रन, if GP is more and these expenses are less, we call them as we call the difference as what? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने बोला ना स्टोरी में ट्विस्ट है। हमारा ट्रेडिंग और पीएल था, अब पीएल 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो गया। सो वील राइट बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर आप अपने इनडायरेक्ट इनकम्स को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सर ये कौन सी इनकम्स होती हैं? आपके पापा का बिजनेस है गारमेंट्स का, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, XYZ, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स ही सेल्स। बिजनेस करके जो कमाया, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। Your father has invested some money into bank FD. What bank will be paying them? Interest. बिल्डिंग का जो साइज था, 11 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 7 फ्लोर्स में तो आपके पापा का बिजनेस है, 4 floors have been let out to somebody. What those tenants would be giving? Rent. Your father has invested businesses money into shares of Tata, Reliance, Maruti and all. What those companies would be giving you? Dividend. And agency services are also performed. What you earn? Commission. ये बिजनेस करने की वजह से नहीं हुआ, ये additional activities हैं, तो we call these incomes as non-operating income. Then bank charges, interest on loan वगैरह वगैरह children is known as what? Non-operating expenses. समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट वगैरह आपने लिख दिया। Whatsoever answer you will now be getting children is known as net profit. So what I want to show you is this, कि ये भी वही चूरन है बैलेंस शीट की तरह चिल्ड्रन, और यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ा रहे आपको। 11th क्लास में ट्रेडिंग पीएल पढ़ा था। सो दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस होल सेक्शन इज योर पीएल। सिर्फ हमें कुछ टर्म्स चाहिए, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लाइक नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, लाइक नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। इसलिए हमने इसको इस तरह से बना लिया है, और वो बाइफर्केशन आपको यहाँ पे नजर आया है। सो व्हाट वी हैव डन इज दिस, हमने पीएल को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। आई रिपीट, पीएल को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल सबने पढ़ा था, आई सपोज। क्या वो 2 पार्ट्स में बना था चिल्ड्रन? वो ट्रेडिंग पीएल 1 हो गया था ना। तो 11th क्लास में आपने एक ट्रेडिंग पढ़ा, एक पीएल पढ़ा। फिर हमने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को 1 बना दिया, फिर यहाँ पीएल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अपने एनालिसिस के हिसाब से हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। सो व्हाटसोएवर इज दिस सेड एज मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ पीएल चिल्ड्रन, it is nothing but it is a trading and broken PL account. Trading and broken PL account. समझ में आ गया? तो please copy this broken PL account. This you already have with you all. Quickly put this children, quickly. चलिए. Yes, sir. Yes. Yes. So children, let's analyze the statement. Ready everybody? चलिए. As I kept on saying कि आपने बैलेंस शीट में अगर वो चूरन पढ़ लिया तो सारे बैलेंस शीट रेशियोज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इफ यू हैव द स्टडी ऑफ दिस चूरन डन वेरी प्रॉपर्ली चिल्ड्रन,
आपको सारे प्रॉफिटेबिलिटी और एक सॉल्वेंसी रेशियो क्लियर हो जाएगा। रेडी एवरीबॉडी? ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस आरएफओ वही है जो बाय सेल होता था, माइनस सेल रिटर्न इज नाउ रीनेम्ड एज आरएफओ रिटर्न। तार पीन का तेल बन गया टर्पेंटाइन ऑयल। लॉजिक समझ में आ रहा है? नाम बदल गया, हरकतें वही है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन? पक्का? सो सेल माइनस सेल रिटर्न used to be called as what children? Net sale. Gross RFO minus RFO returns is मम्मी रिटर्न्स मत समझ लीजिएगा, वो मूवी थी हॉलीवुड की। नेट RFO. Thereafter in class 11th we know how to calculate COGS. Write the formula children, you have ample of space with you. Opening stock plus purchases minus purchase return plus direct expenses minus closing stock. Why do we subtract this closing stock? मैचिंग कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। क्यों ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखा करते थे आपको बताया था। अभी फाइनल अकाउंट्स का वीडियो बनेगा 11th का, तो मैं फ्लोट कर दूंगा ग्रुप में, एक बार फिर से देख लीजिएगा उसको। ओके, सो चिल्ड्रन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब आप नेट सेल्स में से माइनस करेंगे, नेट सेल्स माइनस COGS यूज्ड टू बी व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। सेम फॉर्मूला, नाम बदल गया। अभी मुन्ना वस्त्रालय से साड़ी खरीदती थी मम्मी, अब मम्मी रिलायंस ट्रेंड्स से साड़ी खरीद रही है। साड़ी वही है, ब्रांडिंग हो गई है उसकी। लॉजिक समझ में आया? मुन्ना रेडियो सेंटर से रेडियो खरीदा जाता था, अब रिलायंस डिजिटल से खरीदा जा रहा है। ब्रांडिंग हो चुकी है, चीजें सब वही है। समझ में आया कि नहीं? So children, earlier it used to be net sales minus COGS called as GP. Now it is net RFO minus cost of revenue from operations is called as what? GP. GP में से आप माइनस करते हैं what is titled as operating expenses. What you happen to get children? Operating profit. सीक्वेंस समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा। If I happen to provide you information like net sales and cost of revenue from operations children, will you be able to comfortably calculate GP? Yes, sir. GP सब लोग निकाल लेंगे? Yes, sir. बड़ा अजीब टाइप का है। If now I happen to provide you the information like ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 लाख मैंने आपको दे दिया एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे दिया, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत है चिल्ड्रन, हो जाएगा? सिंपल एज दैट। जीपी से माइनस करते थे तो ये आता था, तो इसमें आप ऑपरेटिंग प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। छत पे गए जमीन से 25 स्टेयर्स चढ़ के, तो वापस कितनी उतरनी पड़ेगी सर? 12.5। ऐसा कैसे सर? अरे एक एक सीढ़ी कूद के आ रहे हैं ना, छोड़ छोड़ के। आप लॉजिक समझ में आ गया? ऐसा काम मत करिएगा, नहीं तो अस्पताल की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। ओके, सबको बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? पक्का? तो ग्रॉस प्रॉफिट के दो फॉर्मूले आपके सामने थे। नेट RFO माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज GP, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज आल्सो GP। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? सेम जैसा बैलेंस शीट में करते थे। पक्का? नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस कर देंगे आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर व्हाई यू हैव रिटन एक्सेप्ट इंटरेस्ट, क्यों नहीं माइनस करवा रहे हैं? आप नाराज हैं क्या सर इससे? ऐसा नहीं है, स्पेसिफिकली आपको एक रेशियो में ये टर्म चाहिए, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट माइनस करने से पहले कितना होगा, इसलिए मैंने इस तरह से डिजाइन कर दिया है। आप घर वैसा बनवाते हैं जैसा आपको पसंद होगा, तो इट इज टेलर मेड बेसिकली। अंडरस्टूड दिस? Yes. So you get what is called as net profit interest minus करने से as well as tax भी minus करने से पहले। Then we'll subtract what children? Interest on loan. Still अभी tax minus नहीं हुआ है, mind your language। अभी tax minus, तो it is after deducting interest but before deducting tax. Now you will subtract tax and you will get that net profit which is after deducting interest as well as after deducting tax.
So if this much composition is well understood children, आपको प्रॉफिटेबिलिटी में मैं चैलेंज करता हूं प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो वही काम होगा जो अभी तक हो रहा था। सर बुक में तो 50-50 फॉर्मूले थे कैपिटल एम्प्लॉयड के, बट हमें वो 5 शब्दों का चूरन काम आ गया। तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12th क्लास में है ये 12 चीजें, याद कर लीजिएगा सीक्वेंस में। कैसा भी प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन आए, चैलेंज आप गलती नहीं करेंगे। और अगर ये 12 लाइन का कंटेंट आपने अडेयर नहीं किया, अगेन इट्स अ चैलेंज, आपका एक भी आंसर नहीं आने वाला। समझ गए बात को? तो प्लीज डीएक्टिवेट दैट तोता मोड एंड एक्टिवेट द सो कॉल्ड रणछोड़दास मोड। समझ में आया कि नहीं? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली। सर ये सब इसके नीचे जो है, अरे ये तो वही है, घर में जो गेस्ट के साथ बच्चे आते हैं इनको तो हम जोड़ते ही नहीं कि ये भी खाना खाएंगे, ये तो बच्चे कुछ में ही काम चला लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ये 4 साल से नीचे वाले, इनका टिकट नहीं लगना है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने लिख दिया, एल्स स्टूडेंट्स वुड हैव आस्क्ड सर कंपनीज ट्रांसफर मनी टू रिजर्व आल्सो, दे पे डिविडेंड आल्सो, तो देयर विल बी सम इफेक्ट ऑफ दिस आल्सो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ये सबसे बड़ा झूठ था, ऐसा कुछ नहीं था। अगला चैप्टर कैश फ्लो जब आप पढ़ेंगे ना चिल्ड्रन, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कैसे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट से पहुंचना है। ऊपर से नीचे आने पे कुछ प्लस की और कुछ, नीचे से ऊपर जाने में जो प्लस हो चुका है वो माइनस, और जो माइनस हो चुका है वो। क्यों सर ऐसा करते हैं? अरे सब कुछ आज थोड़ा बता दूंगा, कुछ एनिवर्सरी के लिए भी तो छोड़ दीजिए। अपने बर्थडे भी पूरा खर्चा कर दोगे तो मम्मी पापा दुखी हो जाएंगे। ओके, तो रेशियो एनालिसिस इज बर्थडे। ओके, चले आगे, चले आगे, चलिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। दिस टेल्स अस बिजनेस करके कितना पैसा आया। अपार्ट फ्रॉम दैट भी तो बिजनेसमैन मल्टीपल इनकम्स अर्न करता है, इनको जब आप प्लस माइनस करते हैं तो यू गेट व्हाट इज टाइटल्ड एज नेट प्रॉफिट। गॉट इट क्लियर? तो जैसे आपने 11th क्लास में 2 प्रॉफिट्स पढ़े थे, वन इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इज नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की ही कितनी वैरायटी है? 3 वैरायटी आपको मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंफर्म? चलिए, व्हाट इज दिस ऑल, बात की स्टोरी है, परेशान मत होइए। दिस इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, कनेक्टिंग अगेन एंड